જો કોઈ રાક્ષસને 4-5 વખત ફાંસી મળે એમ હોય તો શું એ રાક્ષસને બચાવી શકાય? नहीं. આ ધરતી પર એક જ વ્યક્તિ છે જે આ રાક્ષસને બચાવી શકે એમ છે. જાણો છો કે એ કોણ છે? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं. આવો આક્ષેપ લગાવે છે કોંગ્રેસના લીડર પવન ખેરા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એઓ કહે છે કે ગુજરાતમાં જે ગોધરાકાંડ થયા હતા તેમાં મહિલાઓ ઉપર બળાત્કાર અને હિંસાના અપરાધના જે આરોપી હતા બાબુ બજરંગી, એ ભાઈ સાહેબને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જજોની બદલી કરાવીને બચાવ્યો હતો. જેના પુરાવા રૂપે પવન ખેરાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર બાબુ બજરંગીનું સ્ટિંગ ઓપરેશન જે થયું હતું અને જેમાં તેણે સ્વીકાર કર્યો હતો પોતાના અપરાધનો, એ રજૂ કર્યું હતું. જેના પુરાવા રૂપે પવન ખેરાએ એક વિડીયો રજૂ કરે છે જેમાં બાબુ બજરંગી સ્વયં સ્વીકારે છે કે તેણે આ અપરાધ કર્યો હતો અને તેના માટે જ જજની બદલી થઈ હતી. હવે વિડીયોમાં બાબુ બજરંગી પોતાનો અપરાધ કબૂલ કરે છે અને કેવી રીતે કરે છે તે પણ કહેતો હોય છે. એ વિડીયો અહીંયા કોંગ્રેસે નહોતો બતાવ્યો કારણ કે એ જે હિંસાનું વર્ણન છે એ અહીં પણ મારાથી પણ રજૂ કરાઈ શકાય તેમ નથી. એટલી બર્બરતાપૂર્વક એણે હિંસા આચરી હતી એવું તે સ્ટિંગ ઓપરેશનમાં સ્વીકાર કરે છે. એ વિડીયો તમે યુટ્યુબ પર જઈને પોતે સર્ચ કરીને જોઈ શકો છો. જે જોયા પછી તમને એમ થશે કે આ માણસને 4-5 વાર નહીં પણ કમસે કમ 500 વખત ફાંસી થવી જોઈએ. તો પછી શા માટે તે વખતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આવા વ્યક્તિનું બચાવ કરવા માટે થઈને જજોની બદલી કરી હશે? તો એના આક્ષેપ લગાવતા અને આ મોડેલને, જજોને બદલવાના મોડેલને આખા દેશ અને યુપીમાં પણ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે તેવું પવન ખેરાએ આ પ્રેસ કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જાહેર કર્યું. હાલમાં જ યુપીના સંભલમાં પણ વકીલો રણસંગ્રામે ચડ્યા છે. મતલબ કે પોતે આંદોલન કરી રહ્યા છે, પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા છે. શા માટે? કારણ કે તેમના એક પ્રામાણિક જજની બદલી કરી નાખવામાં આવી. બદલી તો છોડો, તેનું ડિમોશન કરવામાં આવ્યું. તેને નીચલા પદ ઉપર ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવ્યું. તો શું થયું હતું આ જજ સાથે અને બાબુ બજરંગીનો પણ વિડીયો જે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જાહેર કરાયો તેના કેટલાક અંશો હું અહીં રજૂ કરું છું, જે તમે પહેલા જોઈ લો. પણ તે પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા અને વિડીયોને લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર જરૂર કરજો. તમે જોઈ રહ્યા છો જાગો ઇન્ડિયાની યુટ્યુબ ચેનલ અને હું દીપેનસિંહ તમારું સ્વાગત કરું છું આપણી ચેનલમાં. पिछले हफ्ते हमने लगातार आपके सामने जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर चर्चा की. आप लोगों ने भी बहुत स्टोरीज की हैं, चलाया है और अभी भी दुर्व्यवहार हो रहा है, अपमानित उनको किया जा रहा है, वो सब आपने देखा. साथ साथ एक और ज्वलंत मुद्दा यूपी से ही है. संभल में जो आपके सामने नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वकील आक्रोशित हैं. कोई ऐसा वर्ग इस देश में आपको नहीं मिलेगा जो परेशान नहीं है. वो छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, संत हो, मिडिल क्लास हो, वकील हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे परेशान नहीं है. ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं. ये हकीकत इन पर मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से, एक गुजरात मॉडल का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं. जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया. उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया. तो हमने छूट दी. पहला जज आया था धोलकिया जी का, उन्होंने बोला कि बाबू बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं. तो फाइल फेंक दी. फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए. फिर तीसरा 1.5-4 महीना हो गए. फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा था, मैं भी सेटिंग करता हूँ, निकल गया है. फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा. जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा जाए और सब जेल खाली कर दिया. बाहर आ गया. तो कोई ये काम, नाम तो भगवान. ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी. तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है. ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है. गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई. तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ,
ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी, कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है, और कैसे ट्रांसफर, मैं आगे और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग मॉडल हैं, उस पर भी आऊंगा। तो जो चंदौसी कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उन वकीलों के साथ हैं। ये वो विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने संभल हिंसा के मामले में उस वक्त के जो सीईओ थे अनुज चौधरी और अन्य और पुलिसकर्मी थे, उन पर एफआईआर का आदेश दिया था। यह एफआईआर का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त गोलियां चलाई, 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया गया, एफआईआर नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से यह एफआईआर हुई। अब यह कोई पहली बार नहीं हो रहा, आगे उससे पहले दिल्ली के दंगों में क्या हुआ वो आपने देखा। अलग अलग जगह पे किस तरह से इन्होंने न्यायपालिका को अपने काबू में करके ट्रांसफर कर दिया, धमका दिया, ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पे। ऐसे कई बार ये लोग करते रहते हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की गई वो भी वह व्यक्ति था, सुल्तानपुर इनको तो हटा दिया खैर विभांशु जी को, और डिमोट भी कर दिया विभांशु सुधीर को। ना केवल हटाया, ना केवल ट्रांसफर की, इनको अपने पद से नीचे वाला पद डिमोट करके वहां भेजा सुल्तानपुर। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की वो है जिसने संभल मस्जिद में सर्वे का आदेश पारित करके इसको मुद्दा बनाया था, विवाद बनाया था। खैर आप लोगों का दबाव था, वकीलों का दबाव था, चुपचाप से ये ट्रांसफर कैंसिल कर दी जिस नए व्यक्ति को लाने की कोशिश की गई। हम और आप कोई केस लड़ते हैं, जाते हैं कोर्ट में किसी के खिलाफ, वकील से संतुष्ट नहीं होते तो वकील बदल देते हैं, लेकिन बीजेपी जज बदल देती है। यह अंतर है, हम और आप वकील बदलते हैं, बीजेपी जज बदलती है। मुरलीधरन, जस्टिस मुरलीधरन का आपने एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब दिल्ली के दंगों में जस्टिस मुरलीधरन ने एफआईआर के आदेश बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ पारित किए थे, आधी रात को जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर हो गया था, आधी रात को। अभी हमारे राजस्थान के जज थे जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता, उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र गौतम भाई अडानी के खिलाफ कुछ जुर्माना लगा दिया, तो सजा उनको तुरंत मिली, 200 किलोमीटर दूर तुरंत ट्रांसफर हो गया। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे ये लोग 1 मिनट में जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू होता है उसको बांध लेते हैं, उसके हाथ को बांध लेते हैं। ये जो हमने देखा गुजरात का उदाहरण मैंने आपको जो दिखाया, वो डीजी वंजारा हो, बाबू बजरंगी हो, माया कोडनानी हो, किस तरह से जज पे जज बदल के इनको राहत मिली। ये तो एक मॉडल है। मोटा भाई भी है एक, ये तो छोटा भाई का मॉडल है। मोटा भाई तो जज की ट्रांसफर कहीं और ही कर देते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोटा भाई का केस अगर किसी जज की अदालत में हो तो जज की मॉर्निंग वॉक बंद, वो किस गेस्ट हाउस में कहां रह रहा है, वहां क्या होगा किसी को नहीं मालूम, तो वो ट्रांसफर कहीं और हो जाती है। तो ये जो मॉडल है, ये लोकतंत्र के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए कितना घातक है ये आपके सामने है। और मैं बहुत प्रसन्नता से कह रहा हूं कि वकील समुदाय, आजादी के आंदोलन में भी वकील समुदाय ने बहुत अग्रणी, सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। और जब लोकतंत्र को, इंसाफ को, न्याय को बचाने के लिए मुहिम हमारे वकील समुदाय ने शुरू की है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो संभल में हुआ, जो गुजरात में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो जयपुर में हुआ, ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि भगवान के बाद अगर कोई न्याय की उम्मीद किसी से करता है तो वो राजा से करता है। भगवान भी राजा के माध्यम से न्याय दिलवाता है। और जब राजा इस तरह का निकले कि वो न्याय के रास्ते में आ जाए, वो न्याय न मिलने दे, वो इंसाफ न मिलने दे, वो इंसाफ और न्याय दिलवाने के वक्त धर्म देखे, जाति देखे, भाषा देखे, पार्टी देखे, तो आप सोचिए कि लोकतंत्र कितने कम दिनों का मेहमान अब इस देश में बचा है। हम वकील समुदाय के साथ खड़े हैं क्योंकि वो न्याय की रक्षा में सड़क पर आज आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अजय सिंह बिश्त उर्फ योगी आदित्यनाथ इस गुजरात मॉडल को यूपी में नहीं लाएं, ला चुके हैं वैसे तो, क्योंकि इस मॉडल से निश्चित मान लीजिए कि आम आदमी को न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। उसको लगता ही नहीं है कि अदालतों में अब न्याय मिल सकता है। जिस तरह का हस्तक्षेप निचली अदालतों में, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, जिस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है जजेस में राजनीतिक पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी को न्याय मिलना, बहुत मुश्किल हो जाएगा लोकतांत्रिक परंपराओं का जीवित रहना। आपके सवाल।
જેમ પવન ખેરાએ કહ્યું કે માનનીય મોદીજીના માર્ગદર્શનમાં સમગ્ર દેશ અને યુપીમાં પણ ન્યાયતંત્રને ધ્વસ્ત કરવાની કામગીરી મતલબ કાર્યવાહી ચાલી રહી હોય તેવું લાગે છે. પહેલા પોલીસ, પછી ઈડી, સીબીઆઈ, ઇન્કમ ટેક્સ, ત્યારબાદ ઇલેક્શન કમિશન અને હવે ન્યાયતંત્ર સીધે સીધું આ સત્તાધીશોના તાબામાં આવી ગયું હોય તેવું નથી લાગતું? આવામાં સામાન્ય માણસ ક્યાં જશે? એને ન્યાયતંત્ર પર ભરોસો નહીં રહે તો પછી શું એ પોતે કાયદો હાથમાં નહીં લે? જો આ ન્યાયતંત્ર જેણે પ્રામાણિક હોવું જોઈએ એ સત્તામાં બેઠેલા સત્તાધીશોના ઈશારા ઉપર ચાલશે તો શું સત્તાધીશોના જે ચમચાઓ છે, જે ચાટુકારો છે, એમના જે મિત્રો છે, શું એ લોકોને ન્યાયતંત્રની બીક લાગશે? નહીં. શું તેઓ કોઈ પણ સામાન્ય માણસ સાથે અપરાધ નહીં આચરે? મજબૂર અને લાચાર થયેલા નાગરિકો આગળ જતા સત્તા સામે વિદ્રોહ કરશે તો શું સત્તાધીશો જાણી જોઈને આ રાષ્ટ્રની સુરક્ષા અને શાંતિ સુલેહમાં ભંગ નથી કરી રહ્યા? આ દેશની અખંડતાને જોખમમાં નથી મૂકી રહ્યા? જો આ દેશની અંદર જજોની નોકરી જ સુરક્ષિત નથી તો પછી સામાન્ય નાગરિકોનું શું થશે? આવા અનેક ગંભીર પ્રશ્નો વર્તમાન સમયની રાજનીતિમાં ઊભા થઈ રહ્યા છે જેનો કોઈ જવાબ આજના સત્તાધીશો આપવા તૈયાર નથી, કારણ કે તેઓ વ્યસ્ત છે રોજ નવા નવા મંદિરોની મુલાકાત લેવામાં. હવે આ દરેક પ્રશ્નો ઉપર આપણે જાતે જ વિચારવું પડશે, કારણ કે આ દરેક પ્રશ્નોનો જવાબ આપણા બાળકોના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલો છે. તો ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઈક કરજો અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આવી માહિતી વધુમાં વધુ નાગરિકો સુધી પહોંચવી ખૂબ જરૂરી છે. તો ફરી મળીશું. જય હિન્દ. ઇન્કલાબ જિંદાબાદ.